A very good afternoon, everybody. I'm Sayukta, your host for today's live from All About Skin Wellbeing team, and I'm sure all of you must be doing really good. Today, we are going to discuss about our skin health with focus on urticaria or hives, which we or our near and dear ones would have encountered at some point of time in their lives. Urticaria is characterized by round rash on the skin that can itch a lot. It may be due to chemicals in certain food items, allergy to certain medications, insect stings, sunlight, and sometimes the cause is unknown. As per study published in Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprosy, more than one-fifth of the population suffer urticaria at one time. 60% of patients are in the age group of 20 to 40 years. Incidences are higher in older age groups. Urticaria is classified as acute and chronic, but the most important part is not to ignore it. And doing self medication can worsen these symptoms. Consult your nearby qualified skin specialist immediately for an early relief. In today's digital world, it's always a boon or blessing if we can get to hear from an expert dermatologist online about urticaria and its types, how we can prevent it, the kind of test required for its diagnosis, and the right treatment and management approach for an early relief. So, ladies and gentlemen, boys and girls, we have with us renowned dermatologist Dr. Priyanka Doke. She is an MBBS, MD, DNB, DVL. She's a dermatologist and also have interest in cosmetology. She has 7 to 8 years of rich experience. She is the only female dermatologist of her area, and she is currently practicing at Lifeline Super Speciality Hospital, Patalpur. Her skill and compassion have made a tremendous difference in patients' life. It's such a pleasure for us, Dr. Priyanka, to have you with us. A very warm welcome to you. Thank you. Thank you for such a nice welcome. Thank you. Yeah. It's a pleasure, doctor. And today we are going to talk about a very important topic, which is urticaria, because urticaria is quite common. कई बार लोगों को पता नहीं होता क्या हो रहा है, लेकिन urticaria इतना common है कि मतलब 5 में से 4 को तो होता ही है कभी ना कभी लाइफ में, तो ऐसे उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है. So to start with, doctor, what is urticaria? Please explain. Actually, urticaria is skin's immune response. Basically, it is body's immune response via skin. So, if there is anything plus minus or कम ज़्यादा अगर कुछ होता है, then our skin responds like urticaria. These are red hives or veins. These are red raised lesions seen over the skin, and it can be seen all over the body. And the most important thing is it is spontaneous. See, means you will not get any history that how it will come or it will go. So you will get spontaneous lesions and it will be extremely itchy lesions on your skin. So for my patients from Pandharpur, I would like to repeat it in Marathi. आपल्या शरीरावर लाल 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 चट्टे येणे आणि त्याच्यावर अतिशय प्रमाणामध्ये खाज येणे आणि बऱ्याचदा याचं काहीही कारण नसताना अचानक संपूर्ण शरीरावर ज्यावेळी तुम्हाला चट्टे येतात आणि ते फार खासतात त्याला आपण अर्टिकेरिया और त्वचेचं पित्त असंही म्हणतो. Definitely. So it's important to understand what is urticaria and how it looks, and you have explained it so well. Now, doctor, what are the main causes of urticaria? क्योंकि कई बार हम देखते हैं बहुत अलग अलग वजहों से, जैसे मैंने भी explain किया, many a times it's due to some food allergy or some medication allergy or some other factors like pressure, water, weather, etc. So, what could be the probable reason cause of urticaria? See, there are many causes of urticaria. So anything under the sun, including sun, can cause urticaria. So to Okay. simplify it, we divide it into two parts, like acute urticaria and chronic urticaria. So if the duration is less than 6 weeks, we call it as acute urticaria. And acute urticaria are again classified into it can be because of like infections, infestations. अगर आपको कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो जाता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, इट कैन प्रेजेंट एज अर्टिकेरिया. देन सेकेंड थिंग इज ड्रग्स. अगर आप कोई मेडिसिन लेते हो एंड अचानक आपको व्हील्स आ जाते हैं तो दैट कैन ऑल्सो कॉज अर्टिकेरिया. नंबर थ्री, वी कैन से दैट फूड फूड एलर्जी इज वेरी कॉमन. किसी किसी पेशेंट को कुछ चीज़ें खाने से अचानक अर्टिकेरियल व्हील्स आ जाते हैं. देन few stings like honey bee sting, it can also cause urticaria. House flies,
mites, it can also cause this urticaria. There are few diseases like autoimmune diseases, it can also present as urticaria. So these are few various causes which can cause urticaria. Then there is another term known as physical urticaria. So physical urticaria are also various types. Physical urticaria means what? Like you can get dermographism. आपने बहुत बार देखा होगा कि अगर कोई पेशेंट ऐसे स्क्रैच कर लेता है, देन दे गेट अ रेज्ड रेड प्लाक ओव्हर दॅट एरिया. म्हणजे कुठल्याही Yes. पेशंटने जर साधं असं स्क्रॅच जरी केलं तर त्याला तिथे तशा पद्धतीचे लाईन्स दिसतात आणि ते एक्स्ट्रीमली इची असतात, खाजवणारे असतात. सो दॅट इज डर्मोग्राफिझम. नंतर ना काही पेशंटला सोलर अर्टिकेरिया असतो. लाईक जितका पोर्शन त्यांचा कवर्ड आहे तो पोर्शन नॉर्मल असतो आणि त्याच्या व्यतिरिक्त जो पोर्शन ओपन आहे तिथे लगेच इचिंग होते, रेडनेस होतं. सो दॅट इज सोलर अर्टिकेरिया. देन ॲक्वाजेनिक अर्टिकेरिया. जेव्हाही पेशंट आंघोळीला जातो त्यावेळी त्याला अर्टिकेरियल लिजन्स येतात. सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द टाईप ऑफ फिजिकल अर्टिकेरिया. देन कोल्ड अर्टिकेरिया. बऱ्याचदा असं होतं की पेशंट ला जर एसीच्या हवेमध्ये जरी बसला, देन ऑल्सो ही गेट दीज काइंड ऑफ लिजन. सो दीज आर व्हेरियस कॉजेस ऑफ अर्टिकेरिया. Right. And Dr. Priyanka, is urticaria a serious disease, or what are the potential complications of urticaria if it is left untreated? See, it depends on the causes of urticaria. If it is acute, means it is if it is less than 6 weeks, जर तुमचा अर्टिकेरियाचा त्रास हा 6 आठवड्यांपेक्षा कमी दिवसांचा असेल, then it comes under acute urticaria. ज्याच्यामध्ये फार सिरियस कॉम्प्लिकेशन सहसा होत नाही, कारण ह्याचं कारण आपल्याला माहिती असतं. It has to be preceded by some of the irritant or some of the triggering event. So in that case, जर तुम्ही medicines घेताय, then you will get relief. बट इफ द अर्टिकेरिया इज क्रॉनिक, लाईक त्याचं जर का कालावधी हा 6 आठवड्यांपेक्षा जास्त असेल आणि इफ इट इज स्पॉन्टेनियस, म्हणजे त्याच्या मागे तुम्हाला कुठलंही कारण मिळत नसेल, देन डेफिनेटली त्याच्यामध्ये पेशंटला सिम्टोमॅटिक तर फार त्रास होतोच, पण याचे काही कॉम्प्लिकेशन्स असू शकतात. वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन इज अँजिओइडिमा. अँजिओइडिमा मीन्स वॉट? ज्यावेळी पेशंटला चेहऱ्यावर, डोळ्यावर, ओठांच्या अवतीभवती आणि जेनायटल ऑर्गन्सवर ज्यावेळी सूज चढते त्याला आपण अँजिओइडिमा असंही म्हणतो. आणि अँजिओइडिमा हा अर्टिकेरियाप्रमाणेच असतो, पण त्याच्यामध्ये स्किन इन्व्हॉल्व्ह होत नाही. स्किन सोबतच त्याच्या आतमधल्या ज्या लेयर्स आहेत त्या सुद्धा इन्व्हॉल्व्ह होतात. सो अशा पेशंट्समध्ये बऱ्याचदा चोकिंगचे चान्सेस वाढतात. सो इट इज अन इमर्जन्सी. देन सेकंड इम्पॉर्टंट थिंग, अर्टिकेरियामधलाच एक कंपोनेंट पडतो अॅनाफॅलॅक्सिस. बऱ्याचदा आपण पाहिलं असेल हनी बीमुळे किंवा कुठल्या तरी ड्रगमुळे, पेनिसिलिन एलर्जी, इट कॅन कॉज अॅनाफॅलॅक्सिस. सो इट इज अ लाईफ थ्रेटनिंग कंडिशन. सो सिम्टोमॅटिक रिलीफ ही एक वेगळी गोष्ट झाली, पण त्याच्या व्यतिरिक्त जर ह्या अर्टिकेरियाचे काही कॉम्प्लिकेशन्स झाले तर डेफिनेटली इट इज लाईफ थ्रेटनिंग. जीवाला याचा धोका असू शकतो. Right. Doctor, when a patient comes to you with urticaria, are there any tests that you normally recommend, or just by clinical investigation you're sure? And if you go for tests, what are those tests? Yes. So, firstly, when patients come to us, the first thing happens is urticaria. There is one specific symptom of urticaria जो आता है और कुछ देर बाद अपने आप निकल जाता है. Like बऱ्याचदा पेशंट्स आपल्याकडे येतात, दे गिव्ह अ हिस्ट्री की आम्हाला अशा पद्धतीचे त्वचेचे पित्त आलेले होते, बट ज्यावेळी ते डॉक्टरकडे येतात तोपर्यंत ते त्यांच्या शरीरावर काहीही नसतं. सो वन पेशंट आर लाईक दॅट की जे फक्त आपल्याला हिस्ट्री देऊन जातात. बऱ्याचदा काही लोक फोटोज काढून आणतात. सो अशा पद्धतीचे काही पेशंट्स येतात अँड दे आर फ्रॉम अक्यूट अर्टिकेरिया बॅकग्राउंड. देन फ्यू पेशंट्स कम विथ अॅनाफायलॅक्सिस और अँजिओइडिमा. ते डायरेक्टली तुमच्याकडे आयसीयू मध्ये प्रेझेंट होतात. एक्स्ट्रीम इचिंग असते बॉडीला, पूर्ण बॉडी रेड झालेली असते त्यांची, आणि त्याच्या व्यतिरिक्त त्यांना हा त्रास असतो की बराचसा श्वास घ्यायला त्रास होतो, टंग स्वेलिंग असते, जिभेला स्वेलिंग आलेली असते. सो या केसेसमध्ये फर्स्ट आमचं लक्ष असतं मॅनेजमेंटकडे, हाऊ टू मॅनेज. आणि 6 वीक्सच्या आधी जे पेशंट ओपीडीला भेट देतात त्याच्यामध्ये आम्ही हे बघतो की त्यांना हा अर्टिकेरिया कशामुळे झालेला आहे. सो 6 वीक्सच्या आधीचे जे पेशंट जे अॅक्यूट अर्टिकेरियामध्ये प्रेझेंट करतात त्याच्यामध्ये हिस्ट्री फार इम्पॉर्टंट असते, आणि बऱ्याचदा आपल्याला हिस्ट्रीमध्येच कळतं की हा अर्टिकेरिया कशामुळे झालाय. जर तो कॉज आपण बाहेर काढला तर त्यांच्यासाठी वेगळ्या टेस्टची सहसा गरज पडत नाही. पण जर हा 6 वीक्सपेक्षा जास्त ड्युरेशनचा आहे तर डेफिनेटली आपल्याला अदर कॉजेसचा विचार करावा लागतो, आणि त्या केसमध्ये आपण बऱ्याचदा इन्व्हेस्टिगेशन पेशंटला सांगतो, ज्याच्यामध्ये त्यांचं कम्प्लीट ब्लड काउंट, ॲब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट, देन सिरम IgE लेवल्स, त्याच्या व्यतिरिक्त आपण थायरॉइड फंक्शन टेस्ट बऱ्याचदा पेशंट्सला सजेस्ट करतो.
आणि बऱ्याचदा जर हा अर्टिकेरिया फिमेल्समध्ये असेल विच इज मोर कॉमन, सो त्यावेळी आपण कनेक्टिव्ह टिश्यू डिसऑर्डर्सचा पण विचार करतो. फॉर दॅट मॅटर आपल्याला तिथं त्यांना ANA वगैरे पण ॲडवाईस करावा लागतो. सो दीज आर द टेस्ट. Right. And doctor, what are the treatment options? How you treat urticaria? सो फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट, इफ यू नो द कॉज, जर तुम्हाला कारण माहिती आहे, सो स्टे अवे फ्रॉम द कॉज. रिमूव्ह द कॉज इज द फर्स्ट लाईन ट्रीटमेंट फॉर अर्टिकेरिया. सेकंड Right. इम्पॉर्टंट थिंग, वी गिव्ह अँटीहिस्टमिनिक्स. सो H1 अँटीहिस्टमिनिक्स जे असतात ड्रग्स ते आपण देतो. आता त्याच्यामध्ये पण फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन अँटीहिस्टमिनिक्स आलेले आहेत. फर्स्ट जनरेशन वी युजली अवॉइड, कारण त्याचा साईड इफेक्ट आहे की त्याच्याने बऱ्याचदा पेशंट्सला झोप येत असते आणि थोडं हेवीनेस वगैरे होतो. सो सीइंग दॅट साईड इफेक्ट प्रोफाईल आपण ते ड्रग्ज अवॉइड करतो. वी प्रिफर सेकंड जनरेशन अँड थर्ड जनरेशन अँटीहिस्टामिन. दिस इज द फर्स्ट लाईन अप्रोच. Then, if the patient doesn't get relief, then second line is we increase the dose. We increase the dose of antihistaminic. And third line, जर ह्याच्यात मी सुद्धा पेशंटला रिझल्ट नसेल, then we go for systemic drugs. Like for short course, corticosteroids we give, or then cyclosporin A. And the third and foremost is omalizumab. आता omalizumabचं क्रॉनिक स्पॉन्टेनियस अर्टिकेरियामध्ये खूप जास्त प्रमाणामध्ये इंडिकेटेड पण आहे ते, आणि रिझल्ट फार छान आहेत. सो वी गो फॉर दोज ड्रग्स. Right. Many a times, Dr. Priyanka, we have seen, I'm sure you also get such cases where, a patient comes to you, they get it diagnosed, they start the treatment. I'm talking about chronic urticaria cases. और ट्रीटमेंट लेते हैं जब उन्हें लगता है कि अच्छा अब तो नहीं आया अर्टिकेरियल लीजन्स नहीं दिखे, तो वो दवाइयां लेना बंद कर देते हैं. दे डोंट इवन इन्फॉर्म देयर डॉक्टर. फिर कुछ टाइम बाद लग रहा है कि अरे फिर से अर्टिकेरिया आ रहा है, तो फिर से बिकॉज दे हैव द प्रिस्क्रिप्शन, सो दे डोंट keep the doctor in the loop. My question to you is it important to complete the treatment, or just when we get relief from the symptoms we can stop it? See, you can stop the treatment, but after informing and after discussing with your dermatologist. सी अर्टिकेरिया, क्रॉनिक स्पॉन्टेनियस अर्टिकेरिया में ये होता है कि अर्टिकेरिया बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन से होता है, एंड कभी भी इट इज स्पॉन्टेनियस. यू नेवर नो ये कब आ जाएगा. सो यू कैनॉट डायरेक्टली स्टॉप द ट्रीटमेंट, बट यू कैन डिस्कस विथ योर डॉक्टर, एंड उनको आप बता सकते हैं कि मेरा ये अर्टिकेरियल सिम्टम्स आर इन रेमिशन. सो योर डॉक्टर्स विल डेफिनेटली taper down your medications, and he will keep you on even a single medicine. Okay, so in my opinion, you should not stop treatment by your own if you are having chronic spontaneous urticaria. But if you are having acute urticaria and you have already avoided the cause, then definitely after one episode you will not get urticarial lesions again, and you can stop that. But for chronic spontaneous urticaria patient, definitely you have to be under the guidance of your dermatologist. Yeah. Right. Doctor, can urticaria be caused by stress? And if yes, then how do stress urticaria looks like? How can stress aggravate urticaria? Yeah, stress is related to the urticaria, and it can be physical stress or emotional stress. Physical stress in the form of physical urticaria, like in cholinergic urticaria, you can say. जब patient excessive exercise करता है, then they get urticarial lesions. या exercise के बाद अगर उनको बहुत ज़्यादा sweating होती है, तो in that case they get urticarial lesions. So definitely with the stress it is related. सेकेंड थिंग, अगर पेशेंट का इमोशनल इम्बैलेंस भी हो जाता है, देन ऑल्सो पेशेंट्स गेट अर्टिकेरियल लीजन्स. सो डेफिनेटली इट इज रिलेटेड टू द स्ट्रेस, फिजिकल एज वेल एज मेंटल स्ट्रेस. Many times patient complains that during night or post evening, post dinner, their urticaria starts worsening. So is there a correlationship? या मेनी टाइम्स इट हैज बीन सीन दैट दिन भर पेशेंट्स को कुछ नहीं होता है, और रात में जब वो सोने जाते हैं तो उस टाइम पे पेशेंट को अर्टिकेरिया होता है. तो वन थिंग इज ड्यू टू कोल्ड. बहुत बार पेशेंट को कोल्ड अर्टिकेरिया होता है. शाम में जब वो एसी ऑन करते हैं या फिर सोने जाते हैं, उस टाइम पे उनको इट इज बिकॉज ऑफ कोल्ड अर्टिकेरिया. इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ फिजिकल अर्टिकेरिया. सेकंड इम्पॉर्टंट थिंग, जो वो ओढते हैं, लाईक जो भी जे पण चादर किंवा ब्लँकेट्स जे ओढतात, त्याच्यामध्ये बऱ्याचदा एक स्मेल असतो, और समटाइम्स द डस्ट इज देयर, एंड वो स्मेल की वजह से पेशेंट कैन गेट अर्टिकेरियल लीजन्स. थर्ड थिंग इज जो उसका मटेरियल होता है, दैट मटेरियल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. अगर वो चुभने वाला मटेरियल है, इरिटेट होने वाला मटेरियल है, तो डेफिनेटली यू विल गेट अर्टिकेरिया.
बहुत बार देखा गया है पेशेंट्स को कि कभी अर्टिकेरिया नहीं होता है, लेकिन अगर स्वेटर पहन लेते हैं तो पेशेंट गेट्स अर्टिकेरिया लीजन. So that is also important, that silk can cause irritation or allergy to the patient. So this is the reason for night urticaria. Mhm. Because we are continuously talking about urticaria, and we know how annoying the situation is with the patient because it itches a lot and then definitely hampers the quality of life. But then कई बार कई ऐसे लोग होते हैं जो सोशलाइज करना बंद कर देते हैं या पब्लिक प्लेसेस पे जाना बंद कर देते हैं बिकॉज उन्हें लगता है कि बार बार इच होगा, बहुत एक एम्बैरेसिंग सी सिचुएशन हो जाएगी. सो दे गो थ्रू अ लॉट ऑफ मेंटल ट्रॉमा एज वेल. तो इस तरह के पेशेंट जब आपके पास आते हैं डॉक्टर प्रियंका, तो किस तरह से आप, क्योंकि मेंटल काउंसलिंग भी क्या जरूरी होती है इस तरह के पेशेंट्स के लिए? यस, डेफिनेटली. देखिए कैसा होता है, जब पेशेंट को बार बार होता है तो कभी कभी उनको इस चीज की आदत हो जाती है और उनको पता होता है कि ये मुझे हो रहा है. बट कभी कभी अगर पेशेंट को स्पॉन्टेनियसली फुल बॉडी पे अर्टिकेरिया हो जाता है तो वो घबरा जाते हैं कि मुझे ये क्या हो गया, या फिर ये लीजन्स कभी जाएंगे भी या नहीं. सो इन दैट केस मेंटल काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट वी हैव टू टेल देम कि ये कोई स्किन का डिसीज नहीं है. इट इज नॉट अ डिसीज, इट इज द स्किन रिस्पॉन्स, इट इज बॉडीज हाँ. रिस्पॉन्स टू सम ऑफ द ट्रिगरिंग एजेंट. सो ये सबसे पहले हम लोग पेशेंट को बताते हैं. और सेकंड थिंग इज कि घबराने की जरूरत नहीं है. वी विल फाइंड आउट द कॉज एंड उसकी, और सबसे पहले अगर आपको कॉज फाइंड आउट नहीं भी करते हैं एंड इफ यू स्टार्ट ट्रीटमेंट तो डेफिनेटली अर्टिकेरिया तो कम हो जाएगा. बट व्हाट वी आर वरीड अबाउट इज व्हाई इट इज कॉजिंग अर्टिकेरिया. सो द कॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड डर्मेटोलॉजिस्ट विल फाइंड आउट द कॉज एंड वंस यू विल गेट द कॉज एंड यू विल एक्ट अकॉर्डिंगली, तो उसके बाद आपको अर्टिकेरिया नहीं होगा. सो घबराने की बात नहीं है. ईचिंग इज क्वाइट सीवियर, सो डेफिनेटली पेशेंट्स को बहुत कंप्लेंट रहती है कि बहुत सीवियरली ईच हो रहा है मैम, हम लोग कहीं पब्लिक प्लेसेस में जा नहीं सकते हैं, हम लोग बैठ नहीं पा रहे हैं. सो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग वाला नहीं है. अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हो सो मेनी ड्रग्स आर अवेलेबल, मेनी गुड ड्रग्स आर अवेलेबल, जिससे आपके सिम्टम्स डेफिनेटली कम हो जाएंगे. और ट्रिगर अगर आप बंद करते हो तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम ही नहीं. बिल्कुल, तो ज़रूरी ये है कि हम समझें कि ये एक स्किन का रिस्पॉन्स सिस्टम है, कुछ ट्रिगर हो रहा है और उससे स्किन रिस्पॉन्स कर दे रही है अपना, और ऐसे में ज़रूरी है कि हम एक एक्सपर्ट से मिले. एक्सपर्ट है क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, तो ये सही व्यक्ति के पास जाना सही सलाह के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद इलाज करना, इलाज पूरा करना, ये भी बहुत ज़रूरी है. डॉक्टर, अर्टिकेरिया की हम बात कर रहे हैं और जैसा कि आपने भी कहा कई ऐसे फूड आइटम्स होते हैं दोज पीपल आर नॉर्मली वेरी एलर्जिक विद, लाइक सी फूड, एग्स, चीज, etc etc. Any dietary precaution that you would like to tell us about? और कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों को अर्टिकेरिया नहीं हुआ है अभी तक, बट दे मेक अ ब्लैंकेट लिस्ट कि अरे सी फूड नहीं खाएंगे क्योंकि सी फूड से लोगों को बहुत एलर्जी होती है, एग नहीं खाएंगे, नट्स नहीं खाएंगे. तो इज दिस ओके टू डू प्रैक्टिस? नो 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 नो, प्लीज ऐसा आप नहीं करें, क्योंकि ये ब्लैंकेट लिस्ट हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है. अगर आप और मैं दोनों सी फूड खा रहे हैं तो हो सकता है आई एम एलर्जिक टू इट, मुझे अर्टिकेरिया हो सकता है, बट आपको नहीं होगा. वी गिव लिस्ट ऑफ फ्यू फूड्स विच आर कॉमनली सीन एज एलर्जिक, लाइक सी फूड, एग्स, देन कुछ लोगों को मिल्क से एलर्जी होती है, पीनट से होती है. तो दीज आर मेजरली पॉजिटिव एजेंट्स ऑफ अर्टिकेरिया, लेकिन इससे हर किसी को एलर्जी नहीं होगी. सो अगर आपको अर्टिकेरिया है, आपको नोन अर्टिकेरिया है, आपको डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया है कि आप इन चीज़ों से दूर रहिए बिकॉज इट कैन कॉज अर्टिकेरिया, देन डेफिनेटली यू हैव टू स्टॉप इट और रिड्यूस इट्स प्रोपोर्शन. बट डेफिनेटली अगर आपको नहीं है देन यू कैन कंटिन्यू इट. बिल्कुल, तो अगर है तो ऑफ कोर्स उसे अवॉइड करना, डॉक्टर को बताना ये जरूरी है, और अगर नहीं है तो फिर अवॉइड करने की कोई बात नहीं है. अच्छा डॉक्टर, कई बार ऐसा होता है हेलो बिकॉज आज डॉक्टर, आपको आवाज आ रही है? हेलो हेलो, आर यू गेटिंग माय वॉइस डॉक्टर? हेलो 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 डॉक्टर, आपको आवाज मिल रही है अभी? हेलो आर यू गेटिंग माय वॉइस डॉक्टर? या 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 नाउ यू आर गेटिंग? यस यस यस, प्लीज Okay. गो अहेड. So doctor, I was trying to ask you कि अर्टिकेरिया जब होता है और हम लगातार अर्टिकेरिया पे बात कर रहे हैं,
कई बार हमने हम्म, देखा है कि फीवर हुआ, यूटीआई हुआ या वायरल फीवर हुआ जो इस मौसम में बहुत कॉमन है, या फिर कोविड के टाइम हमने देखा था कि कई बार बॉडी पे हाइव्स होते थे। तो क्या इस तरह की वायरल फीवर का या इस मौसम में जिस तरह की बीमारियां होती हैं उसकी वजह से भी अर्टिकेरिया हो सकता है? यस, डेफिनेटली इसकी वजह से भी अर्टिकेरिया हो सकता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक्यूट अर्टिकेरिया के कॉजेस में कुछ इन्फेक्शंस या इन्फेस्टेशंस भी आते हैं। सो इन्फेक्शंस कैन बी बैक्टीरियल और वायरल, एनी वायरल इन्फेक्शन। कोविड तो एक वायरस था ही, बट एनी वायरल इन्फेक्शन कैन प्रेजेंट एज अर्टिकेरिया। सी, बिकॉज अर्टिकेरिया इज बॉडीज इम्यून रिस्पॉन्स। सो इसमें आपकी इम्यूनिटी कम नहीं हो रही है, इसमें आपकी इम्यूनिटी एग्जैगरेट हो रही है। सो एनी फॉरेन इन्फेक्शन जो आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन लाइक कोविड, तो आपकी बॉडी उससे फाइट करना चाह रही है, और उसकी वजह से उसी का रिस्पॉन्स स्किन पे आपको दिख रहा है इन द फॉर्म ऑफ अर्टिकेरिया। सो डेफिनेटली वायरल फीवर, कफ, कोल्ड, इस सब में, या फिर लूज मोशंस, इन सब में आपको अर्टिकेरिया हो सकता है। एंड डेफिनेटली यू गॉट द कॉज। राइट। अच्छा डॉक्टर, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, इट्स अ वेरी कॉमन टेंडेंसी इन आवर सोसाइटी बिकॉज ओवर द काउंटर मेडिकेशन इज सो इजीली अवेलेबल, वी हैव केमिस्ट शॉप्स इजीली accessible, approachable, and when we know that okay, something is happening which is out of an allergy, we go directly to the chemist shop and get few anti-allergens. That is a very very common practice. So in urticaria, is it a good thing to go for these over-the-counter things? No, 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 no. We will not suggest to go over the counter and take medicine. See, any medicines, any form of medicine, you should not take over the counter, because see, every medicine has their effects and side effects. And बहुत बार ये होता है कि एक पेशेंट डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गया है, उसको अर्टिकेरिया लाइक सिम्टम्स है, डर्मेटोलॉजिस्ट ने उसको सब बताया है कि आपको इस वजह से हो सकता है, अगर प्रॉब्लम होता है तो आप इस काइंड ऑफ ड्रग्स ले सकते हो। सिमिलरली उसके किसी रिलेटिव को अर्टिकेरियल सिम्टम्स आता है, तो वो अपना मेडिसिन उसको दे देता है कि लाइक मुझे इससे रिलीफ हुआ है तो आप भी ये ले लो। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पेशेंट को जिस वजह से अर्टिकेरिया है, सेम रीजन से दूसरे पेशेंट को भी अर्टिकेरिया हो। तो डेफिनेटली आपने ये कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप उसका कॉज नहीं ढूंढ पाएंगे। और बहुत बार ये होता है कि एक्यूट स्टेज में अगर आप डायग्नोस करके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हो, तो इट विल प्रोग्रेस टू क्रॉनिक अर्टिकेरिया। और जब स्टेज क्रॉनिक पे चली जाती है, तो आपको शायद जो 5 डेज में आपका कोर्स कंप्लीट होने वाला था, वो शायद आपको टू टू ओवर द पीरियड ऑफ 2 to 3 मंथ्स भी लेना पड़ सकता है। सो डेफिनेटली ये पेशेंट के लिए काफी टीडियस हो जाता है। सो वी सजेस्ट कि डोंट टेक ओवर द काउंटर ड्रग्स। बिल्कुल, तो ओवर द काउंटर ड्रग इज अ बिग नो नो इन केस यू हैव these urticarial lesions coming up. Please go and consult the right person, which is a qualified dermatologist. हो सकता है डॉक्टर ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं गांव में हैं, डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं, तो उतने वक्त के लिए इतनी जो इचिंग हो रही है उससे थोड़ी राहत मिल सके, इसके लिए ट्रीटमेंट से पहले या डॉक्टर को दिखाने से पहले कुछ कर सकते हैं? हाँ, अगर बहुत ज़्यादा आपको सीवियर इचिंग है और अभी आप नाइट में आप कहीं पे जा नहीं सकते हैं, इन दैट केस यू कैन टेक एनी एंटी एलर्जिक। लेकिन अगर आप नॉर्मल पेशेंट है लाइक इन द एज ग्रुप ऑफ 20 to 40 years और 50 years, दैट इज ओके, एक सिंगल टैबलेट आप ले सकते हो। लेकिन इफ यू आर प्रेग्नेंट और आप बच्चे हैं या फिर ओल्ड एज पीपल है, एल्डरली पीपल में हम लोग बोलते हैं, बेटर टू मीट योर डर्मेटोलॉजिस्ट और एनी डॉक्टर। लाइक अगर आपको ओवरनाइट कोई डर्मेटोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं हो रहा है, देन यू कैन गो टू योर फैमिली डॉक्टर, राइट। क्योंकि वो भी आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए कोई मेडिसिन देंगे, बट बेटर टू अवॉइड बाय टेकिंग ओवर द काउंटर। डेफिनेटली। अच्छा, कई बार होता है क्योंकि हमारे घरों में, हमारे सोसाइटीज में होम रेमेडीज बहुत बहुत ट्रेडिशनल एक चीज है जो हम सब करते हैं। ऐसे में अगर इस तरह से बहुत कुछ इच कर रहा है तो हमें लगता है नारियल का तेल लगा लो, एलोवेरा आजकल बहुत इजीली सबके घरों में पाया जाता है, लोग एलोवेरा काट के उसका जेल लगा लेते हैं। तो अर्टिकेरिया के केसेस में भी कई बार लोग ये करते हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? होम रेमेडीज, आई एम नॉट एक्चुअली अगेंस्ट होम रेमेडीज, बट आप किस चीज के लिए होम रेमेडीज यूज कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सी, अगर आपको अर्टिकेरियल लीजन्स आ रहे हैं और आपने इस पर एलोवेरा जेल या एनी कोकोनट ऑयल, और समटाइम्स कोई लोग ठंडा पानी लगा लेते हैं, अगर आप लगा लेते हैं और अगर इफ यू आर हैविंग कोल्ड अर्टिकेरिया, सो व्हाट विल हैपन, इट विल हाँ। वर्सन, नो। सो राइट। डेफिनेटली कोई भी चीज आप बिना कंफर्म किए मत कीजिए।
Once in a while it is okay, but if you are doing it regularly, then it is not okay. Definitely don't go for any home remedies for urticaria. Yeah. राइट। और जैसा कि इनिशियली डॉक्टर ने बोला भी था कि एनीथिंग अंडर द सन एंड इवन सन कैन Hmm. कॉज अर्टिकेरिया, सो वी डोंट नो व्हाट कैन ट्रिगर आवर अर्टिकेरिया। मान लो हमने नारियल का तेल लगाया और हमें उसी से एलर्जी हो गई, एलोवेरा जेल लगाया उसी से एलर्जी हो गई, तो Yes. इसलिए इस तरह की चीजें ना करें, डॉक्टर के पास जाए। A very common question, doctor, especially those who are the patients of chronic urticaria, they often ask that ये completely cure होगा कभी? What's your answer to that? So, see, treatment is available. Actually, chronic urticaria है तो definitely they have crossed a period of 6 months, and ये काफी उनके लिए mental trauma होता है कि we are suffering since last 6 months, and now also it is just going on, going on, going on. So for those patients, I just want to tell them that see, if you are symptom free, then consider it as कि आपका urticaria कम हो गया है. हम अगर चाहते हैं कि कभी इसके बाद लाइफ में अर्टिकेरिया हो ही ना, तो समटाइम्स इट इज नॉट पॉसिबल। सी, बिकॉज आप इस तरह से सोचिए कि अर्टिकेरिया इज योर स्किन इम्यून रिस्पॉन्स। क्या आप चाहेंगे कि आपके बॉडी की इम्यूनिटी पूरी तरह चली जाए? डेफिनेटली नॉट। अगर आपकी इम्यूनिटी पूरी तरह चली जाती है, फिर आप बाकी इन्फेक्शन से कैसे फाइट कर सकते हैं? सो बिल्कुल। डेफिनेटली मुझे ये लगता है कि विद ट्रीटमेंट उनको अगर रिस्पॉन्स आ रहा है तो दे शुड बी सेटिस्फाइड। ट्रीटमेंट लेने से अर्टिकेरिया बहुत मिनिमम हो जाता है, लेकिन अगर वो कभी ट्रीटमेंट अचानक बंद कर देते हैं तो समटाइम्स इट कैन वो फिर से आपको थोड़े बहुत लीजन्स आ सकते हैं। तो डेफिनेटली यू शुड थिंक इन दैट डायरेक्शन। बिल्कुल। तो ट्रीटमेंट लेना है, ट्रीटमेंट कंप्लीट करना है और डॉक्टर को लूप में ज़रूर रखना है। तो अगर लग रहा है कि अरे अब तो ठीक हो गए हैं, तो छोड़ दें क्या दवाई लेना? अगर छोड़े या नहीं, ये डिसीजन जो है ये डॉक्टर पर छोड़ेंगे तो बेटर होगा। तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, ये बहुत ज़रूरी है। आई एम गेटिंग सो मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम आवर व्यूअर्स, आई विल टेक फ्यू ऑफ देम। मोनिका शर्मा का सवाल है, कैन मेडिकेशंस कॉज अर्टिकेरिया? Yes, medications can also cause urticaria. There are some NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs जिनको बोलते हैं. In common language we call it as painkillers. Painkillers से definitely allergy known है. Then second important thing is aspirin. Aspirin बहुत से patient लेते हैं, उसकी वजह से भी होता है. BP के कुछ medicines है, उनका मैं brand name नहीं लूंगी, but generic name is ACE inhibitors जो होते हैं, that can also cause this urticaria. So medication. कुछ लोगों को तो पैरासिटामोल की भी एलर्जी होती है, so patient can get urticaria with paracetamol also. So definitely drugs can cause urticaria. Yeah. और जो लिस्ट है वो इतनी लंबी है जिससे एलर्जी हो सकती है, जो ट्रिगर हो सकता है अर्टिकेरिया के लिए, तो किसी भी चीज को मेरे ख्याल से हम लाइटली नहीं ले सकते। आकांक्षा If का you have सवाल। urticaria, हाँ, yes, 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 यस please go यस। ahead. Yeah. सो आकांक्षा का सवाल है, हाउ लॉन्ग डज एन अर्टिकेरिया आउटब्रेक लास्ट? Yes. So urticaria outbreak last for 24 hours. अगर आपको अर्टिकेरिया आ रहा है बॉडी पे, अगर आपको यहाँ पे एक लीजन आया है, so it will not last longer than 24 hours. बहुत बार 1 to 2 hours में ही वो सबसाइड हो जाता है, बट अगर थोड़ा क्रॉनिक है तो यू विल गेट नंबर ऑफ लीजन्स. सो अर्टिकेरिया विद ट्रीटमेंट इट विल डेफिनेटली गो विद इन 1 or 2 days. अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, देन ऑल्सो सिंगल लीजन विल नॉट लास्ट मोर देन 24 hours. ओके। एक और सवाल है, व्हाट इज डेमोग्राफिक अर्टिकेरिया डॉक्टर? या डर्मोग्राफिक अर्टिकेरिया और डर्मोग्राफिज्म इज कि जब बॉडी में आप कहीं पे भी स्क्रैच करते हो या आपको कहीं कुछ लीजन आ जाता है, अगर आप उसको थोड़ा भी ट्रिगर देते हो तो उस लाइन पे आपको अर्टिकेरियल व्हील या फिर रेज्ड लाइन दिखती है, इसको कहते हैं हम लोग डर्मोग्राफिक अर्टिकेरिया. Shayla Agrawal is asking, how does temperature affect urticaria? Yes. So there are various types of physical urticarias. जैसे कि कोल्ड अर्टिकेरिया होता है. कोल्ड अर्टिकेरिया मतलब जैसे ही आप एसी ऑन करते हो या अचानक आपका टेम्परेचर चेंज होता है, तो इन दैट केस आपको फुल बॉडी पे और ओवर द बैक आपको लीजन्स आना शुरू हो जाते हैं. So that is one of the urticaria which is related to the temperature. Then one is solar urticaria.
आप अगर सनलाइट में जाते हो और आपको सन एलर्जी है, तो एक्सपोज पोर्शन जहाँ है वहाँ पे आपको रेज लीजन्स आने लगेंगे, बहुत बार स्वेलिंग आ जाती है, तो दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द टेम्परेचर. So these urticarias are definitely related to the temperature. और one is aquagenic urticaria. बहुत बार पेशेंट शार लेने जाता है और अगर सडन उसका टेम्परेचर चेंज होता है, हमेशा वो अगर ल्यूक वार्म वाटर से नहा रहा है और अगर उसका टेम्परेचर चेंज कर लिया, लाइक हॉट वाटर से नहाना शुरू किया है या एकदम कोल्ड वाटर से वो नहा रहा है, तो इन दैट केस ऑल्सो दे कैन गेट अर्टिकेरिया. ओके, दीपक सक्सेना का सवाल है, इज अर्टिकेरिया मोर कॉमन इन एडल्ट्स? Urticaria is more common in adults and that too in females, yes. Okay. We have almost discussed everything, doctor, that we could about urticaria. But the bottom line remains that in case you have urticaria, you need to go and consult the right person, which is a qualified dermatologist. And completing your treatment is very important. Trusting your doctor is very important. Now, before we sum up the whole session, any take-home message that you would like to give to our viewers? So I would like to tell all my viewers that don't worry. See, urticaria is not something which is not treatable. Definitely, you have to go to a right person to know the cause of urticaria, treat it, and then definitely you will get the results. सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आपको कोई बता रहा है कि इस वजह से इस ये ट्रीटमेंट लेने से या फिर ये होम रेमेडी करने से आपका अर्टिकेरिया ठीक हो सकता है, देन प्लीज डोंट लिसन टू देम. Meet your dermatologist, ask them once. One visit is very important. See, I'm not saying yeah, you have to go every 15 days or every week to a dermatologist to ask what can I do, but at least one visit you have to a qualified dermatologist. So that is the take home Right. message from my side. Yeah. Thank you very much, Dr. Priyanka Dhoke. It was wonderful talking to you. Thank you for your valuable time and this very informative session. Thank you so very much. Thank you so much. Thank you. So at least now our viewers know what is urticaria, how to manage it, and how important it is to not go for self-medication or over-the-counter medication and go to a qualified dermatologist. So thank you, doctor, once again. Thank you so much. This is Simon. And viewers, yeah, doctor. And viewers, thank you for your active participation in today's session. To get latest updates on how to keep your skin healthy, do like and follow our FB page, all about skin well-being. We are also available on YouTube, Twitter, and Instagram. Thank you and have a good day ahead. Goodbye.